Hello friends, welcome to Pooja classes. Today I will be discussing number system of class 9, this chapter 1, and we'll be discussing about rational and irrational and some of their properties. Let's get started. So when I talk about number system, what is number system? Number system is basically categorized into many types of numbers like rational numbers, irrational numbers, integers, real number, complex number. We all have heard about all such numbers, but whenever we try to figure it out that which one is related to which portion by what kind of relation, it is a kind of a bit tricky. But now, no, it will not be tricky from now onwards. So friends, complex numbers are divided into real numbers and imaginary number. Real number means whatever number is real, ठीक है? जो real में है और imaginary वो नंबर होता है कि जो होता नहीं बट हम उसको assume कर लेते हैं, ठीक है? ये I की फॉर्म में होता है. ये syllabus में नहीं, this is not in your syllabus. We'll be studying this in higher standards. Real number का further categorization होता है rationals and irrationals में. Okay, and rationals are then further categorized as whole number, natural number, and integers. So what are whole numbers? Whole numbers are the numbers starting from 0, 1, 2, 3 and so on. Whereas natural numbers are the numbers starting from 1, 2, 3, so on. Integers are the negative and all the positive नंबर्स, ठीक है? जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सब इंटीजर्स के अंदर आते हैं. नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है. सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं. सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी कमिंग फॉरवर्ड, प्लीज लिसन इट केयरफुली. सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है. इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? जीरो. अगर जीरो नहीं होता होल नंबर में तो मैं कह सकती थी कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, लेकिन अगर जीरो नहीं है तो वो होल नंबर कैसे है? जीरो की ही वजह से वो होल नंबर है. जीरो ही एक्स्ट्रा है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स में, ठीक है? Whereas if I talk about irrational number, irrational numbers हो जाएंगे जैसे कि √2, √3, पाई, ठीक है? वो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं, ऐसे नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. ओके, so rationals and irrationals. Okay, rational numbers which can be written in the form of p by q and q is not equal to 0. Example 1 by 2, 0.1, 3. The numbers that can be written in the form of p by q, that means जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम ले सकते हैं और डिनोमिनेटर जो है q which will not be equal to 0. p by q की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा. We can easily see that 1 by 2 is not equals to 0. Here it is written 0.1. A question arises कि यहाँ तो denominator नहीं है, so this 0.1 can be written as 0 point down into 0 लगा दो, comes out as 1 by 10. 1 by 10 is a rational number. Okay, now this 3 can again be written as 3 by 1, so it is again a rational number. Regarding irrational numbers, those numbers which cannot be written in the form of p by q, यानी कि उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. Those are categorized as irrational number. For example, √2, √5 and pi. And in the upcoming video, I will be discussing more about rational and irrational in the terms of decimal expansion. Before that, we should solve some more extra topics. So our next topic is a rational number between two given rational number. That means we will be finding out rational number between two given rational numbers. That means we will be given any two numbers and you have to find out rational number between them. Can you tell me that how many rational numbers are present between any two given numbers? If I plot a number line 1, 2, 3. Suppose I am taking only the positive integers. If I write down 0 and 1, if you say that कि 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, तो 0 और 1 के बीच में से 0.1, 0.2, 0.3,
एग्जांपल में कि ये रैशनल नंबर है 0.1 यानी कि 1/10 सो ऑन, ठीक है। तो यानी कि आप होगा कि इसके बीच में 10 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको फर्दर कैटेगराइज ऐसे कर दूं, 0.1 और 0.2 को फर्दर में डिवाइड कर दूं, 0.1 एंड 0.2, तो 0.1 और 0.2 के बीच में फिर फर्दर कितने और रैशनल नंबर आ जाएंगे, अगेन 0.11, 0.12, 0.13 एंड सो ऑन। फिर अगर मैं किसी दोनों को ले लूं और फिर उनको फर्दर कैटेगराइज कर दूं तो उनके बीच में फिर और ऐसे 10 आ जाएंगे। तो यानी कि इस कैटेगराइजेशन की कोई लिमिट ही नहीं है, यानी कि किन्हीं दो ऑलरेडी प्रेजेंट नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ हमें पूछा गया है सिर्फ फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको निकालना बहुत ज्यादा आसान है, चाहे 6 पूछे चाहे 7 पूछे, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमको 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है और इजी मेथड है, क्या करो इसको एक p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, ठीक है। 3/1 into 100 and into 100। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 300 over 100 और 4/1 बन जाएगा 400 over 100, ठीक है। 3 और 4 के बीच में वैसे तो कई सारे आ जाएंगे, 3.1 और 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 so on like that। ये इस तरीके से कैटेगराइज करके थोड़ा सा इजी हो जाता है लिखना। 300 over 100 and 400 over 100, अब इन दोनों के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स लिख देना, ठीक है। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सो 6 रैशनल नंबर्स विल बी 300 से स्टार्ट कर लो, 301 over 100, 302 over 100, 303 over 100, 304, 305 and 306, ठीक है। हमने इसको 100 से इससे मल्टीप्लाई किया, हम 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इसको 100 से इससे मल्टीप्लाई किया कि ताकि हमको एक बड़ा नंबर मिल जाए और फिर बड़े नंबर के बीच में हम इजीली वो नंबर लिख दें, ठीक है। सबसे इजी मेथड है। अगर आपका p by q की फॉर्म में ऑलरेडी एक्सप्रेस, सपोज आपको लिखा होगा 2/3 और 7/4, इसके बीच में आप निकालो रैशनल नंबर। अगर ऐसे लिखा होता तो कुछ नहीं करना था, अगेन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बना दो, ठीक है। लेकिन फिर आप ये देखोगे कि इनके तो डिनोमिनेटर सेम है नहीं। ये वाला मेथड सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 100 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 100 है, तो इसीलिए मैंने इनके बीच में नंबर लिख दिए। पर यहाँ पे डिनोमिनेटर 300 आता है, यहाँ पे 400 आता, तो उसके लिए बेस्ट मेथड ये था कि पहले आप डिनोमिनेटर सेम बनाइए एंड उसके बाद दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए कॉमन एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना है उससे, ठीक है। और नाउ आई टेल यू वन मोर मेथड टू सॉल्व द रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। अब देखो ये यहाँ पे इस फॉर्म में हो गए 3/5 और 4/5, इसके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट, इट इज इजी, d इज इक्वल्स टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये यहाँ से हम d निकाल देंगे, उसके बाद x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d करके हमारे रैशनल नंबर आ जाएंगे। इसमें y और x क्या होंगे, ये जो हमको रैशनल नंबर गिवन है यही y और x होंगे, ठीक है। द ग्रेटर विल बी y, द स्मॉलर विल बी x। Okay, so here x is equals to and y equals to, which one is greater among 3/5 and 4/5? It is very easy, cross multiply करके देख लो, 5 3s are 15 and 5 4s are 20, so obviously 4/5 is greater, so greater will be the y, that means 4/5 will be y and 3/5 will be x। here d अब हमको निकालना है x और y, ये हमने ले लिए, so d will be equal to y minus x, that means 4/5 minus 3/5 over n plus 1. What is n? n is the total number of rational number that you have to find. Here n is equals to 5. 5 plus 1. So 4/5 minus 3/5 will be 1/5 over 6, comes out as 1/5 into 1/6, that is 1/30.
Okay, so 1 by 30 comes out as D. Now to find out 5 rational number between 3 by 5 and 4 by 5, it is very easy. Your rational numbers will be 5, or you can just simply write down rational numbers will be x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d, x plus 5d. 5 पूछे ना, 1 2 3 4 and 5th one. तो x plus d, x क्या है हमारा 3 by 5, 3 by 5 plus 1 by 30, again 3 by 5 plus 2d, that means 2 by 30, 2 into d, 2 into 1 by 30, 3 by 5 plus 3 into 1 by 30, 3 by 5 plus 4 into 1 by 30, 4 by 30, and 3 by 5 plus 5 into 1 by 30 comes out as 5 by 30. So 3 by 5 plus 1 by 30, आपको सिर्फ एक फाइंड आउट करना है, उसके बाद सारे ऑल्टरनेट ही हैं. 3 by 5 plus 1 by 30 कितना हो जाएगा, 5 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30. दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 plus 1. 18 plus 1 is 19. That means 19 by 30. This will be 19 by 30. No need to solve the remaining. It will be 20 by 30. Alternative देखो सिर्फ 1 1 के गैप को मैंने बढ़ाया. 20 plus 30, 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30, and 24 by 30. You just need to write down in the alternate manner. 1 2 3 4 5th, this one is 6th one. ठीक है, सिर्फ 5 पूछे गए. So these are your 5 rational number between 3 by 5 and 4 by 5. So again, there is one question of this exercise 1.1. State whether the following statements are true or false, that every natural number is a whole number. क्या सारे natural number whole numbers होते हैं? Natural number कहाँ से शुरू हो रहे हैं? Natural number शुरू हो रहे हैं 1 2 3 so on. और whole number कहाँ से शुरू हो रहे हैं? Whole numbers हमारे शुरू हो रहे हैं 0 1 2 3 and so on. तो क्या सारे natural number whole number होंगे? Natural number 1 से शुरू हो रहे हैं, और ये तो 1 से तो 0 इसके अंदर included ही है, और 0 एक और extra है whole number के. तो every natural number is a whole number. It is true, but it is not true otherwise. That means every whole number is not a natural number except 0. ठीक है, except 0 every whole number is a natural number. Every integer is a whole number. Is every integer a whole number? Whole numbers are starting from 0 onwards, and integers we also have negative integers. So negative portion तो आएगा ही नहीं whole number के अंदर. तो यानी कि जो हमारे integers हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं. और यहाँ पूछा है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर है, और होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज फॉल्स. ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स. एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. यू हैव टू टेल दैट कि सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर होंगे. क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? इज इट ट्रू? टेल मी. दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. ये इतने सारे मेरे पास होल नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे एक रैशनल नंबर है 1/2. ये रैशनल है, बट क्या ये होल नंबर है 1/2? नो, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर. 1/2 यानी कि 0.5. 0.5 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज अ डेसिमल नंबर, but it is a rational number. So that means it is not necessary that all rational numbers are whole number. But converse of this statement is definitely true, that all whole numbers will be rational numbers. Okay, so this is statement that every rational number is a whole number is false. Our next topic is representation of irrational number on number line. Okay, we'll be representing irrational numbers on number line. Under root 2 हमको represent करना है. Locate under root 2 on number line. It is very easy. Under root 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? See, under root 2 can be
the perpendicular side, it becomes the hypotenuse. Hypotenuse is equals to under root of perpendicular square plus base square. ठीक है, so what I have to do, I have to make a right angle triangle whose one side is 1 and another side is also 1. After joining those two sides, that is the hypotenuse, I will get under root 2. It is very easy. Draw a number line. Take this point as O. Draw OA equals to 1 सेंटीमीटर. एक यूनिट डिस्टेंस लेनी है हमको. 1 यूनिट भी कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले रही हूँ. ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज द बेस्ट यूनिट, मतलब द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लेना. तो 1 सेंटीमीटर इज द बेस्ट डिस्टेंस दैट आई कैन टेक. 1 सेंटीमीटर I have taken. OA is equals to 1 centimeter. After that, from point A, draw a perpendicular on this line segment OB, which is again 1 centimeter in length. Okay, I have to draw AB, which is 1 centimeter in length. Join O to B. Now OB square will be equal to OA square plus AB square by Pythagoras theorem. So OB will be equals to under root of OA square plus AB square comes out as 1 square plus 1 square equals to under root 2. तो OB कितना हो जाएगा? under root 2. यानी OB जो डिस्टेंस है कितनी है? under root 2. अब आपको क्या करना है? आपको कंपास को पॉइंट O पे प्लेस करना है और OB को मेजर करना है. उसके बाद पॉइंट O पे कंपास को प्लेस वैसे ही रहने दो और उसके बाद इस लाइन पे एक आर्क कट करो जो कि यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा. इट इज नॉट दैट एक्यूरेट, बट व्हेन यू विल मेक इट विद कंपास एंड scale, it will definitely come accurate. This point represent, take this point as C. Point C represent under root 2. Okay, on number line. It is very easy construction of under root 2. अगर बोलते हैं under root 3 बनाने को, तो under root 3 कैसे हो जाएगा? under root 3 बनता under root 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 1 3. ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3. तो अंडर रूट 3 ऐसे बनता, यानी कि एक साइड में तो रूट 2 चाहिए और एक 1 चाहिए. अब स्केल पे जो होती है हमारी डिस्टेंसेस जो होती है वो इरेशनल नहीं होती, तो अंडर रूट 2 आपको स्केल में नहीं मिलेगा. क्या करना पड़ेगा? रूट 3 बनाने के लिए पहले आपको रूट 2 बनाना पड़ेगा. ये आपको रूट 2 डिस्टेंस मिल गई. अब यहाँ से आप रूट 3 बना दो. एक साइड तो ये रूट 2 हो गई, यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर लेके 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो. ठीक है, ये जो डिस्टेंस आएगी फिर ये आपके अंडर रूट 3 आ जाएगी. इसको मेजर करके यहाँ पे आप आर्क कट करो, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 निकल जाएगा. ठीक है, रूट 3 अगर आपको बनाना हो ऐसे. सो दिस वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन. सो वी हैव सम ट्रू फॉल्स एंड वी हैव टू गिव रीजंस फॉर दोस. That every irrational number is real number. क्या सारे irrational real होते हैं? मैंने शुरुआत में बताया था कि जो real number है वो दो में कैटेगराइज हैं, rationals and irrational. तो सारे irrational तो real का पार्ट होंगे. That means this is true. Okay, ये true हो जाता है. Every point on the number line is of the form under root m, where m is a natural number. They are saying that कि number line पे हर एक point जो है वो under root m की फॉर्म में है, यानी कि 1 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 1, अंडर रूट 2 की फॉर्म में है. सारे के सारे पॉइंट वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. क्या सारे के सारे पॉइंट जो नंबर लाइन में क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे किसी के? व्हाट अबाउट द नेगेटिव वन? नेगेटिव भी तो है. अगर एक बार पॉजिटिव मान भी लेते हो आपको कि चलो पॉजिटिव हो जाएंगे, हालांकि सारे हैं नहीं, क्योंकि देयर आर मेनी प्राइम नंबर्स आल्सो जो कि किसी के स्क्वायर नहीं है. एंड देयर आर सम अदर नंबर्स व्हिच आर नीदर प्राइम बट देन आल्सो दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ squares. Now what about the negative one? Negative तो आएगा नहीं. -1 का अंडर रूट कैसे निकालोगे? ठीक है, it cannot be expressed. So this is false. Every real number is an irrational number. वो कह रहा है कि सारे real number irrational होंगे. कुछ real rational भी तो है, तो सारे real irrational कैसे हो सकते हैं? So this statement is false. There is one more question. Are the square root of all positive integers irrational? यानी कि
सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होगा क्या वो इरेशनल होगा। पॉजिटिव इंटीजर 4 ले लो, 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है 2, क्या ये इरेशनल है? नो। वो कह रहे हैं कि सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल आना चाहिए, ठीक है। तो अंडर रूट आप 5 ले लो, चलो ये तो नहीं होगा, चलो मान लिया, ठीक है। उसके बाद आप ले लो अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का कितना आ जाएगा 3, क्या ये इरेशनल है? नहीं। तो जब वो ये तो सबके लिए सेटिस्फाई नहीं है, तो दैट मींस ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, सो इट इज वेरी इजी। अंडर रूट 5 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? कैन रिटन एज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि आपको लाइन सेगमेंट में ठीक है आपको क्या लेना पड़ेगा? 2 यूनिट की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी 2 डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, 2 यूनिट की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी और एक लेनी पड़ेगी 1 यूनिट की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। टेक दिस पॉइंट एज O, टेक दिस पॉइंट एज A। नाउ ड्रॉ OA इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट A ड्रॉ AB of 1 centimeter, which is 2 centimeter. Join O to B. This will be under root 5. Can be written as OB. Can be written as OA square plus AB square. O is 2. OB can be written as under root of 2 square plus 1 square. That means under root 5. So OB is equal to under root 5. Okay? This will be the distance. OB equals to under root 5. So as discussed in the starting of the video, I told you that I will be giving you a question for your homework. So today's task is find out 9 rational number between 0 and 0.1. So this is a bit tricky. If you will have any problem, let me know in the comment section. Please like, share and subscribe my video. Thank you.